तो मेरा सबसे पहला ये सवाल है आपसे कि यासिर, वेयर यू आर फ्रॉम एंड व्हाट इज योर एक्सपीरियंस बैकग्राउंड एंड इंडस्ट्रियल बैकग्राउंड? My name is Yasir, and I am from Pakistan, Karachi. And basically, I am mechanical engineer, and I am working with this. Currently, I am working with NSRP Vietnam, and my background is I last 15 years I am working with oil and gas industries and petrochemical industries. Okay, good. So, Yasir, after attending my 3 days course, so how do you feel practically? What is your confidence level in using the Primavera? Did you have any prior experience with the Primavera? Yeah, I have experience with Primavera previously, but I didn't feel this experience this experience can help me to grow my career in my current industry. So I search a lot on social media, and I search a lot on the Google, and I search a lot on the YouTube. So I decided to complete this training in Karachi. So when I go there and I seen the training environment is so, and I didn't get this the skills what I want. So I decided to done the online training with Sir Sojoy, Tripcon, I think Tripcon in the Tripcon company. So with Sir Sojoy, and after the 3 day training, really I am very impressed, and I feel myself very boosted, and I feel myself I can work with my industry, with my current company, with these skills, and this training can help me to grow my career in future. So, before this training, did you have any personal kind of brush with the Primavera, or did you took some formal training somewhere else, or this is your first training, No, first formal actually, training? the professionally or formally, this is my first training, but I searched a lot on on YouTube regarding Primavera, and I have previously in my laptop Primavera, but I am not capable to use this software before the training with Sarsajoy. I can use little bit, but not sequentially. So after finish my training with Sir Sajoy, this 3 day training, and I feel myself I can utilize my skills and this training skills in my future. So, I'm just curious to know that Yasir, you can speak in English and Urdu combination. So, I just want you to express yourself fully. Okay, so you can say the answer in the Urdu. See, you Mhm. had the opportunity to do a training in Karachi itself, because Karachi is a very big place and it has got all kind of the facilities are there for the learning. So, what made you decide that you will do this training from across the border and that too online instead of doing face to face in the Karachi city? I mean, that's your hometown. I mean, what was your selection criteria which made you take this decision to train with me? So, what was the key points that you were looking for, which you found that I could provide you? Yeah, basically मुझे जो चाहिए था प्राइमावीरा में, let's suppose I need to know the practical skills and professional skills. Hmm. This professional and practical skills only can give me the person who have implemented Primavera in his career, in his Yes. previous career, and he is expert in Primavera with practical, not theoretical. Practical means, let's say we have to implement one calendar. Okay, the trainer, what we have in Karachi, he has, I'm not aware his background, but what I discussed with him, I assume that he has theoretical knowledge more than practical knowledge. So I decided to go through the training across the border because I required, and I want the practical skills
or by my own hand during the training. The skills we can utilize in the future or in my current industry or in my current situation or in my future purpose. Okay, so that's very good to know. But though Mm. for those who are listening in from Pakistan, let me tell you the one thing that Yasir is a very patriotic Pakistani, and he has decided it professionally to be trained by me. And there's nothing wrong because I get a lot of the Pakistani fans, and we as Indians we appreciate the music from Pakistan. We should appreciate the good values across the border and in the future, and we should learn to live in peace together, and we can live in separate countries, so that's not a problem. We have our own values, but we must be competing for good values. We must show that I'm doing something good, you take it from me. So that should be the exchange, and that's what he came in for. And Yasir is going to his new job in the Vietnam, and that gives him a better strategic hold on his job because he's going there with a new skill, and I wish him a very good life. Okay. Sure. Okay, thank you very much. Thank you, sir. Thank you very much, sir. अब यहाँ से ब्रेक हो गई, ठीक है। अब जी हम सर। चलते हैं आपके उसमें, आपकी स्क्रीन पे। जी सर। स्क्रीन शेयर कर लो। ओके सर, मैं समझा वो आप मुझे गो अहेड देंगे। नहीं नहीं, अच्छा अच्छा, ठीक है सर। आपके पास है ना? जी सर, जी सर, जी सर। आप नहीं, आप जो है ना मतलब रिकॉर्डिंग कर लो आप। जी देखो ये आपके लिए जो है काम आएगी, इसमें कोई सवाल जी पूछोगे जी उसका जवाब आप फिर से रिव्यू कर सकते हो, हम्म, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। स्टॉप शेयरिंग। बढ़िया बना दे आपने, जो है बहुत ही अच्छे तरीके से करा है काफी। तो आप इसमें देख लें सारा कैलेंडर, टाइम शीट, थैंक यू सारा सर। सारा जो है बहुत ही अच्छे तरीके से। थैंक यू वेरी मच, इट्स ऑल अबाउट यू सर। ठीक है, देखो प्राइमावेरा जो है बहुत ही अच्छी चीज है, सबको सीखना चाहिए। जी सर। और इंजीनियरिंग जो है बढ़िया होनी चाहिए। इंसान के लिए जो है सबसे बड़ी चीज होती है शेल्टर। हम कहते हैं ना रोटी कपड़ा और मकान। जी सर। अगर इंजीनियर अगर अच्छे तरीके से प्राइमावेरा सीख लेगा तो वो अपनी सिविल इंजीनियरिंग की नॉलेज को अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट कर पाएगा। जी सर। ठीक है, आगे आगे जो इंसान जो है और भी अच्छे जो है स्ट्रक्चर्स में रहेगा, चाहे वो काम करने के लिए हो, चाहे हॉस्पिटल हो, चाहे स्कूल हो, सब बढ़िया बनेंगे। ठीक है, तो ठीक इसमें सर। देखें क्या किया आपने। तो इसमें आपने तो ये शुरुआत हो रही है यहाँ से, ठीक है। अब इसको सिंगल लेटर में लेते हैं। हाँ, ठीक है, ये आप बिल्कुल ऊपर से स्टार्ट करें, ठीक है। तो इसमें तो आपने जो है काफी ये बढ़िया कर लिया है इसमें। जी सर। अब इसमें आपका कोई सवाल, कोई कंसर्न है इसमें? जी सर, मतलब कोई चीज कंसर्न। आप करना चाह रहे थे जो चीज नहीं हुई, या फिर कोई चीज जो है रुकी हुई है कहीं पे? एक्चुअली सर रुकी हुई तो नहीं है, लेकिन बस जब मैं इम्प्लीमेंट कर रहा था तो मेरे सहन में कुछ सवाल आए थे जो मैंने नोट किए हैं इस बहुत अच्छी बात है। नोटबुक में सर। हाँ हाँ, बहुत कर्सर अच्छी बात है। कर्सर छोड़िएगा सर। हाँ, ये लीजिए। अच्छा, इसमें ना ये ध्यान रखना कई बार लाइनें गायब हो जाती हैं, तो अच्छा, उसमें उसमें क्या सर? ये जो जैसे रिलेशनशिप की लाइन है ना, एक तो बटन ये हम्म, है, ये वाला बटन आप एक बार क्लिक करेंगे ना तो क्या होगा, लाइन गायब हो जाएगी। कई बार अरे क्या होता है बटन ऑन होता है फिर भी लाइन नहीं दिखती। उसका जो इलाज पता क्या है? उसका क्या है सर? ये और ये है अच्छा, इलाज उसका। ठीक है। ठीक है, ये ध्यान ठीक है, रखना। ठीक है सर। सो सर मैंने नोट किए थे कुछ सवाल। सो मेरा पहला मतलब जो क्वेश्चन वो ये है जो मैंने अभी हाईलाइट किया है। लेट्स सपोज के हमने रिसोर्स असाइन कर दी एक्टिविटी में ऑलरेडी,
ठीक है, लेट सपोज जैसे फॉर एग्जांपल इंस्पेक्टर मैंने असाइन कर दिया, ठीक है, मैंने देखा कि मतलब उसके इंटायर ड्यूरेशन में मतलब वो ऑलरेडी लेवल्ड है, बट एक वन डे इन बिटवीन हिज वर्किंग 24th March, let's suppose it's come 24th March and I seen it is मतलब ये केस ने अपनी लिमिट से ज्यादा काम किया, मतलब वो रेड जोन में आ रहा है, तो हम सिर्फ उस एक दिन को कैसे लेवल करेंगे, या तो हमें पूरा लेवल करना पड़ेगा या फिर उस एक दिन को लेवल करना पड़ेगा, तो वो कैसे करेंगे बिल्कुल, सर? बहुत अच्छा सवाल है आपका। आई एम ग्लैड यू आर गेटिंग दिस क्वेश्चन, सो यू आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, इस वाली फाइल को मतलब इस वाले प्रोजेक्ट को मैं ये बंद करता हूँ। मैं आपके ना इसका डेटा मैं जो है एक सेकंड रुको, लेसन 6 लेसन 5, हाँ मैं इसमें ही लेसन 5 में ही मैं डाल देता हूँ। बहुत अच्छा सवाल है, आई लाइक इट। थैंक यू सर। देखिए यहाँ पे ना मैं काम करूंगा कि यहाँ पे एक मैं 10 दिन का टास्क मैं बनाऊंगा, इसको आप ना ये 10 दिन कर दो, इसको इसकी जो ड्यूरेशन है ना 10 दिन कर दो, ठीक है। सिर्फ एक टास्क टास्क नंबर की? 7, हाँ ये टास्क नंबर 7 नंबर है ना इसकी, जी सर। आप इसकी ड्यूरेशन कर दो 10 दिन, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम देखेंगे हमारे पास रिसोर्सेज क्या है, उसमें से एक रिसोर्स छांट के हम लगाएंगे यहाँ पे। जी सर। तो हमारे पास जैसे रिसोर्स तो खैर कई है, ये तो फिल्टर लगा हुआ है, जी तो सर। हम ये कहते हैं कि चलो इसमें फिल्टर को हटा के देखते हैं ऑल रिसोर्स। तो हम्म। अपने ग्रुप में देखेंगे, ये आपका ग्रुप है, तो इस आपके वाले ग्रुप में तो जैसे हमने ले लिया वर्कर 1, ठीक है। जैसे मान लो वर्कर 1 देखो यहाँ पे ये असाइन टू करंट प्रोजेक्ट ये भी नहीं लगा हुआ, जी ठीक है। सर। तो हम एक काम करते हैं कि वर्कर 1 को टास्क नंबर 7 पे लगाते हैं, लगाइए आप इसमें राइट क्लिक करके डिटेल ले लीजिए। वर्कर नंबर 10 वन 1 वन 1 को लगा लीजिए अभी, ठीक है सर। ठीक है। वर्कर 1। हाँ, अब इसमें क्या होगा कि जब आप वर्कर 1 को ये लगाएंगे ना, तो प्राइमावेरा क्या करता है कि इसके ना एक वो टाइम शीट तैयार कर देगा, ठीक है। टाइम शीट तैयार कर देगा, इसमें जैसे क्या हुआ, ये 10 दिन का क्यों नहीं ये दिखा रहा है, ये इस बार की लंबाई 10 दिन क्यों नहीं हुई, इसमें क्या शेड्यूलिंग का प्रॉब्लम? शेड्यूल जो है ऑटोमेटिक होना चाहिए, नहीं ऑटोमेटिक तो है, फिर ये 10 दिन क्यों नहीं पार हो रही, ये एक सेकंड देखते हैं। इसमें टास्क किस टाइप से है, फिक्स ड्यूरेशन, टास्क डिपेंडेंट है, इसको इसको जरा 20 दिन करना जरा, इसमें 20 दिन का बार आना चाहिए ना। 20 दिन का आना चाहिए। हाँ इसमें रुको, इसमें कोई कंस्ट्रेंट तो नहीं डली हुई? नहीं सर। टास्क 7 यही है, जरा मिटाना इसे जरा टास्क को। अच्छा ये टास्क को ये अच्छा 1 मिनट रुको ना, ये स्टेटस कर रहा है, ये इसलिए नहीं जा रहा है। इसमें रुको, एक सेकंड, रिसोर्सेज में जाते हैं हम, इसमें एक्चुअल इसको ना जरा 0 करना, इसको एक्चुअल को 0 कर दो ये, ठीक है। अब इसको ठीक है, ठीक है। ये ना मैंने क्या किया है, इसमें मैंने रिसोर्स को मैंने ये लगाया है और मैंने इसको 20 दिन के लगाया, फर्ज करो इसको 20 दिन के लगाया, ठीक। अब इसमें प्राइमावेरा क्या करता है कि प्राइमावेरा इस आदमी को काम जो है, जो 20 दिन का काम है ना, उसको बराबर बांट देगा। मैंने कहा भाई ये आदमी जो है ये लगेगा फुल डे के लिए, ठीक है। तो आप इसको ना काम बांट दो। तो प्राइमावेरा क्या करता है, कैलेंडर की तरफ देखता है, कौन सा कैलेंडर चल रहा है, वो देखता है भाई ये तो 6 दिन का कैलेंडर चल रहा है, दिन में 8 घंटे, तो रोज इसको 8 घंटे के हिसाब से काम दे दो, तो ये टाइम शीट बन गई, ठीक है। अच्छा, अब अगर मान लो ये टाइम शीट अगर ये बन गई है, तो इसमें क्या है कि ये जो टाइम शीट है, इसमें प्रोजेक्ट मैनेजर और रिसोर्स अगर आपस में तय करते हैं, वो कहता है कि सर देखिए ये इस टाइप की इंजीनियरिंग है, शुरुआत के जो 4 दिन है उसमें मेरे को 10 घंटे काम करने पड़ेंगे, फिर उसके बाद जो ये जो आखिर के जो 4 दिन है उसमें 2-2 घंटे कम काम करूंगा। तो आप एक काम करो कि यहाँ पे ना 1 मिनट रुको जरा, पहले तो इसमें मैं आवर्स बंद कर देता हूँ, उसकी जरूरत नहीं है यहाँ पे।
तो टाइम यूनिट्स में गया और आवर्स शो ड्यूरेशन लेवल डेट्स में गया, डू नॉट शो टाइम, वर्कर 1 था 10 था, वर्कर 1 वर्कर 1 ना, हाँ तो वर्कर 1 की टाइम शीट कहाँ पे गई, एक मिनट वो गड़बड़ी मैंने ही कर दी। टाइम यूनिट्स आवर, अंडू करें सर? नहीं एक मिनट वो ना, ये बड़ी अजीब सी बात है, यहाँ पे टाइम यूनिट्स आवर डे आवर दिखा रखा है, डेट्स में अरे बड़ी अजीब बात है, एक सेकंड, एक्चुअल तो नहीं पड़ रहा इसमें, वर्कर 10 है, अच्छा वर्कर 10 है इसमें अभी, वर्कर 10 है। वर्कर अच्छा वर्कर 1 जो है वो मिट गया था, कोई नहीं, वर्कर 10 का ही देखते हैं। तो इसमें यहाँ पे फिल्टर में ये कर लेता हूँ, इसमें फिल्टर बाय करंट प्रोजेक्ट रिसोर्सेस, हाँ ठीक है, ये वर्कर 10 का है, वर्कर 10 का है। तो वर्कर 10 की ना देखो ये टाइम शीट इसने ऐसे ये बना दी, उसने कहा अभी देखो ये आदमी जो है दिन में 8-8 घंटे ये काम करेगा, ठीक है। अब ये आदमी जो है आपके पास आया कि सर ऐसा है कि हमारी जिस टाइप की इंजीनियरिंग है ना, तो शुरू में हमें क्या करना पड़ता है कि हमारे पास जो ये जो 4 दिन है, ये सोम मंगल बुध और ये बृहस्पति, हमें 4 दिन ना 10-10 घंटे काम करना पड़ेगा, और ये आखिर के 4 हम 6-6 घंटे काम करेंगे। तो मैंने क्या किया, मैं सेल में गया, मैंने 10 घंटे डाल दिए इसमें, ठीक है। तो ये प्राइमावेरा ये अलाउ करता है मुझे, हाँ प्राइमावेरा में इस चीज की इजाजत, देखो प्राइमावेरा को जब आप बांटने को दोगे तो वो इसमें क्या ये करेगा कि अपने हिसाब से तो बराबर बांटेगा। अब मैं बताता हूँ इसमें कॉन्सेप्ट आ जाता है रिसोर्स कर्व्स का। अब इसमें अब मैं दिखाता हूँ इसका ग्राफ। अब इसमें क्या हुआ कि 4 दिन आदमी 2 घंटे काम कर रहा है एक्स्ट्रा, और 4 दिन 2 घंटे लेस काम कर रहा है, वो मेरे उसके बीच में तय है। तो इसके अंदर जो है हमने मैनुअली की है, ठीक है। अच्छा अब इसके अंदर क्या होता है, अब मैं बताता हूँ कि इसमें अगर मैं टास्क के अंदर मैं ये जाऊंगा ना, टास्क की डिटेल में, एक्टिविटी डिटेल में, ध्यान से देखना, एक यहाँ पे एक मैंने ये डलवाया था, यहाँ पे एक फील्ड थी कर्व्स, ये रिसोर्स कर्व, एक मिनट रुको, रिलेशनशिप एक्सपेंसेस स्टेटस, इसमें अच्छा कर्व का फील्ड जो है इसमें ये एरिया, एक मिनट रुको जरा, इसका कॉलम मैं डलवाता हूँ। कंट्रोल F कर, इसके अंदर टाइप करना कर्व, हाँ ये आ गया ना कर्व। अब इसमें ये वाला कर्व मैं ले लेता हूँ, अब आपको कर्व जो है ये समझ में आ जाएगा। देखो इसमें क्या 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 लिखा रहा है, मैनुअल, ठीक है। अब मैं बताता हूँ कर्व का कॉन्सेप्ट क्या होता है। देखो काम को ना हम जिस तरीके से बांटते हैं तो उसको हम कहते हैं रिसोर्स कर्व। अब ध्यान से देखना, इसमें बेल शेप्ड में क्या होगा कि काम शुरू में कम होगा, फिर ये ऊपर की तरफ बढ़ेगा, बिल्कुल, फिर उसमें बेल की तरफ जैसे घंटी होती है ना, फिर वो कम हो समझ गया, मैं समझ गया। देखो अब इसमें क्या है, अब इसमें आप इसमें बेल शेप्ड लो, फिर आप देखो इसमें ग्राफ को, बेल शेप ले लो, इसमें करो, सेलेक्ट करो बेल शेप ले ली, अब इसमें यस कर दो, यस। अब ऊपर से ग्राफ का बटन दबाओ, अब देखोगे इसने काम को, नहीं ग्राफ का बटन दबाओ, पहले तो ग्राफ का बटन दबाओ, रिसोर्स कर्व,
हाँ, ये है ना रिसोर्स का। अच्छा, जी। अब इसमें हम एक काम करते हैं, हम इस काम को फैला देते हैं 50 दिन पे। हम्म, ठीक है, देखो अब भी ये कर्व जो है ये बना हुआ है। बिल्कुल। ठीक है, देखो इसने क्या हम्म, करा, काम को ये बेल शेप में 50 दिन पे फैला रहा है। अब हम्म, इसमें क्या है कि ये ओवर एलोकेशन है ना, हम्म, आप चाहो तो इसको लेवल कर सकते हो, चाहो तो नहीं भी करो लेवल, हम्म, क्योंकि ये आपने एक ही रिसोर्स को काम बांटा है, पहले वो कम कर रहा है, बाद में ज्यादा कर रहा है। ये बिल्कुल। अगर आपस में तय है तो ठीक है। अब इसके अंदर क्या है कि अगर आपने इसकी शेप को अगर चेंज वो करना है, तो ये जितने भी इंडिविजुअल जो डेज है ना जो दिख रहे हैं आपको, हम्म, इसमें जाके आप जो है वो नंबरों को छोटा बड़ा कर देंगे, तो अपने आप जो है अपने जो कर्व की जो शेप है वो फैल जाएगी। तो अब मैं ओरिजिनली आपका जो सवाल था कि हम हम्म, लेवल कैसे करेंगे, आपने हम्म, जिस दिन का कम करना है तो कम कर दो, जिस दिन का बढ़ाना है तो बढ़ा दो। यहाँ पे आपको पूरी इजाजत है, यहाँ पे इजाजत है। हाँ, हम्म, हम्म, यहाँ पे आप उसको छोटा बड़ा कर दो अपने हिसाब से। अच्छा, ठीक। अब आपने क्या कहा, अब हम्म, आपने प्रेमावीरा से कहा कि भैया देखो ये हम्म, मुझे बेल नहीं चाहिए, मुझे हम्म, ऐसा है कि हम्म, लीनियर चाहिए, लीनियर। हम्म, तो मेरे ख्याल से इसमें जो है ये बराबर बांटता है। हम्म, तो इसमें देखते हैं ग्राफ में, हाँ ये हम्म, आपका है लीनियर जो कि नॉर्मल है। नॉर्मल है। हाँ, अच्छा फिर हम गए इसमें, हम्म, तो ये डिपेंड करती है आपकी इंजीनियरिंग पे। इंजीनियरिंग पे। हाँ, एक होता है जो फ्रंट लोडेड में क्या होता है कि पहले काम ज्यादा होता है, बाद में कम होता है। बाद में कम हो जाएगा। हाँ, ये ऐसा है, हम जब ये हम्म, सर्वर वगैरह ये सेटअप ये करते हैं ना, बिल्कुल। तो तब ये इसी पैटर्न से काम होता है फ्रंट लोडेड में। तो शुरुआत के दिनों में हमें थोड़ा 10-12 घंटे ज्यादा काम करना पड़ता है, फिर उसके बाद जैसे काम कम हो बिल्कुल। जाता है, हम आदमी कहते हैं कि भैया 6 घंटे काम करो और जाओ घर। आपके टोटल जो 20 दिन या 50 दिन पे है, आपके वो 8 ऑटोमेटिक लेवल। टाइम शीट लग गई है, आपकी दिहाड़ी लग गई है आपकी। वो ऑटोमेटिक लेवल हो जाएंगे। हाँ, इसमें क्या होता है, हम इसको लेवल भी नहीं करते क्योंकि हम एक्स्ट्रा आदमी इसमें लगा नहीं रहे ना हम। क्योंकि हमने आखिर में कम कर दिया ना। आखिर में कम कर दिया। देखो वहां कंपनसेट आदमी कर दिया में, हमने। मैंने शुरुआत में मैंने बात कही थी कि ये जो 8 मैन आवर्स है, मैंने हम्म, एक बात साथ में कही थी, एक फाइन पॉइंट, कि कुछ लोग होते हैं जो 8 घंटे से भी ज्यादा काम कर सकते हैं, बिल्कुल। और कुछ लोग होते हैं हो सकता है 8 घंटे ना काम कर सकते हो, लेकिन उनको सिस्टम में कंप्लाइंस करनी होती है, इसलिए वो 8 घंटे करते हैं। लेकिन जो एवरेज जितने भी जो ह्यूमन बींग्स हैं, जितने भी इंसान है दुनिया में, 70% एंड अबव वो आठ आठ घंटे के आसपास वो बिल्कुल फुल एनर्जी से काम कर सकते हैं। तो इसलिए बिल्कुल। 8 घंटे को तो तय किया हुआ है कि भाई ये बेस लाइन है। अगर कोई ज्यादा करता है क्योंकि उसके हम्म, काम की जरूरत है, उसकी इंजीनियरिंग की जरूरत है। अब जैसे मान लो कि भाई कोई डॉक्टर है, उसने एक पेशेंट का ऑपरेशन करना है, उसने पहले एस्टिमेट लगाया एक्सरे के हिसाब से, क्योंकि इस चीज को मैं देख चुका हूँ, खुद मेरे ताऊजी थे, एक्सरे के हिसाब से जो है उनको लगा कि ऑपरेशन 1 घंटे में पूरा हो जाएगा। लेकिन जब उन्होंने देखा तो अंदर जब ऑर्गन खोला तो देखा तो इसकी बीमारी ज्यादा फैली हुई है, जितना एक्सरे में नहीं आई है पकड़ में, उससे ज्यादा मुझे काम करना पड़ेगा। तो 1 घंटे की बजाय वो 2 घंटे भी करते थे। अब उसमें बिल्कुल। जो है वो अपने आप को ओवर एलोकेट करते थे, दिन में 10-10 12-12 घंटे पेशेंट्स का इलाज करते, क्योंकि जो सर्जन है वो वेट नहीं कर सकता अपने काम के लिए। वो ये बिल्कुल। नहीं कह सकता कि चलो मैं आज मैं थोड़ी सी दवाई दे देता हूँ, थोड़ा सा रेस्ट कर लो, परसों देखेंगे फिर। वैसे नहीं हो सकता, क्योंकि जो आदमी इस वक्त जो परेशान है और उसकी जिंदगी मौत जो है बिल्कुल बॉर्डर लाइन पे है। ठीक है, तो ठीक है फिर सर। उसके लिए करना पड़ता है। तो कई बार इंजीनियरिंग में क्या होता है, हमारे पास कुछ काम होते हैं, जैसे हम की साइट सेटअप कर रहे हैं, तो उस वक्त हमें टेम्पररी स्ट्रक्चर, ये वो इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक, इलेक्ट्रिसिटी लाइन, पाइपलाइन, साइड पे जो है वो बनाना है ऑफिस, तो पहले हमें ज्यादा काम करना पड़ता है, फिर हम धीरे धीरे 8 घंटे के जो है वो साइकिल में आ जाते हैं। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल आदमी जब शुरुआत में जो आदमी जाता है, तो हम उसको क्या करते हैं, पहले ज्यादा काम करा के बाद में उसको कंपनसेट वो कर देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और क्लियर। और कई बार इंजीनियरिंग की जरूरत होती है कि भाई शुरू में हमारे पास साइट एक्सेस नहीं है, ठीक है, कोई दूसरा भी ठेकेदार काम कर रहा है, तो उसमें फिर हम ये बैक लोडेड वाला ये पैटर्न यूज करते हैं। शुरू में काम हल्का होगा, बाद में हाँ, भारी हो जाएगा। बाद में फिर जो है जब हमें साइट की एक्सेस मिलेगी, तब बिल्कुल। अपना जो हमारा जो काम का जो बैकलॉग था, वहां पे दूसरे भी ठेकेदार पैरेलल में काम कर रहे थे, तो उनको हमें ये जगह देनी थी, तो उनको थोड़ा वक्त देना था, तो हम उनको दे देते हैं, बाद में हम ज्यादा कर लेंगे, लेकिन हमारी टोटल दिहाड़ी वही रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल सर। अब इसके अब ये तो पैटर्न आपकी सहूलियत के लिए जो बना दिए, लेकिन असली काम आप यहाँ पे कर सकते हो। आपको बिल्कुल। ये जो सेल्स हैं, इसमें आप अपने जो है एक्सपर्ट जजमेंट से आप इसको एडजस्ट आप कर सकते हो।
ठीक है। शुरू में जो है 10 घंटे दे दिए, बाद में जो है हाँ कंपनसेट कर दिया, उसको मैं हाँ समझ गया हाँ, सर, क्लियर हो इसमें आप गया। बिल्कुल मैनुअली करके टाइम शीट बना सकते हो, लेकिन हम सॉफ्टवेयर क्यों यूज करते हैं? क्योंकि सॉफ्टवेयर जो है बड़े स्केल पे जो है काम को पहले कर देता है, बिल्कुल उसके बाद हम बिल्कुल। छोटे स्केल पे थोड़ी फाइन ट्यूनिंग हम कर सकते हैं। फाइन ट्यूनिंग करने के लिए बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। फाइन ट्यूनिंग हम कर सकते हैं। तो बिल्कुल मेरे ख्याल से अब सवाल का जवाब क्लियर है। क्लियर है सर, वेरी क्लियर। थैंक यू हाँ, चलो वेरी गुड, बहुत अच्छा सर। सवाल था। थैंक यू सर, थैंक और यू। और दूसरा सवाल सर ये है, मतलब हमने टोटल रिसोर्स के मैन आवर्स कैलकुलेट कर रहे हैं, जितने भी रिसोर्स हमने असाइन कर दिए प्रोजेक्ट में, ठीक है। हम्म, अब उनके हमें टोटल फिगर चाहिए, मैंने मतलब मैनेजमेंट को दिखाने के लिए कि हमारे इतने मैन आवर्स जो है इस प्रोजेक्ट में हैं, तो वो कैसे कैलकुलेट करेंगे सर? देखो इंडिविजुअल का तो हमें मैन आवर वो दिखता ही है। हम्म। अब इसमें इसमें क्या होता है कि इसमें ना हम एक्सपोर्ट हम कर सकते हैं, 1 मिनट जी। रुको। इसमें इंडिविजुअल का तो मैन आवर हमें ये दिखता ही है। तो इसमें आप एक काम करो, देखो, हम्म, आप यहाँ पे ना कॉलम डाल लो। ये अब मैं आपका वो वाला प्रोजेक्ट खोलता हूँ जिसमें आपने एक्चुअली काम कर रखा है। जी। ये मैं सॉफ्टवेयर वाला खोलता हूँ, ठीक है। देखो, हम्म। इसको आप खोलो, और जहाँ पे आपके जो बजटेड वाले जो कॉलम है ना, हम्म। देखो बजटेड कॉस्ट है, आप वहां पे जो बजटेड यूनिट डाल लो तो उसमें आपको टोटल दिख जाएगा। हम्म। देखो, ये जो बजटेड लेबर कॉस्ट है, बजटेड नॉन लेबर कॉस्ट, ठीक है। हम्म। आप एक काम करो, यहाँ पे जाओ, जाओ इसमें हम्म, जाओ, कॉलम में जाओ, ठीक है। ठीक है। ये देखो, ये जो हम्म, यूनिट्स वाला जो ग्रुप है ना जो आपके, ये रहा, ठीक है। ठीक। अब देखो यहाँ पे, आप देखो, हम्म, ये जो BL1 जो लेबर यूनिट्स है, ये आप ले B1 लो, ठीक। ठीक है। तो ठीक। आप इसको ना, इसको एक मिनट हो, इसको यहाँ पे डाल लो। अच्छा, हम्म, फिर उसके बाद जो होती है ना यूनिट्स, जैसे ये तो बजटेड आपके जो लेबर नॉन लेबर यूनिट्स है, बजटेड मेटेरियल यूनिट्स भी होता है। तो हम्म, मेटेरियल की वो तो क्वांटिटी हो गई, पहले इसको देखते हैं। इसमें ठीक। आपको ये मैन आवर्स जो है वो दिखाई पड़ रहा है, हम्म। ऊपर जो है ना ये मैन आवर, और ये ऊपर ये मशीन आवर्स है। अब तो अच्छा आपको अच्छा। याद ही होगा ये कहाँ से आ रहा है, ये ये ना तो याद आ रहा है 288, यार। ये PC में से आ रहा है। और ये हम्म। आपका जितने भी आपने लगाए थे, आपने हम्म। मतलब सिस्टम एनालिस्ट, प्रोजेक्ट मैं समझ मैनेजर, ये गया सर, उनका समझ गया, क्लियर, क्रिस्टल क्लियर सर। है। वेरी गुड, ठीक है। एंड टोटल थैंक मैन यू आवर्स, हाँ। सर। ठीक और है। ये बस, नीचे उसका ब्रेकअप है, हाँ नीचे ब्रेकअप आ गया, दूसरे सवाल का भी क्लॉकवाइज वो ग्रुप। हल, दूसरे सवाल का भी हल निकल आया सर। दूसरा अच्छा, सवाल, हाँ दूसरा सवाल ये था दिखाएं कि क्या था। कम्युलेटिव मैन आवर्स फॉर हाँ, ईच। क्यूमुलेटिव देखो, ग्रुप वाइज आ गया, फिर आपका प्रोजेक्ट वाइज आ गया, हाँ ठीक वो है। टोटल भी आ आप गया, इसको ब्रेकअप जो है भी ना आ गया। लेवल 1 तो ऊपर हुआ टॉप का, आप एक बार ही करना, ये लेवल 2 में प्लस माइनस का बटन दबा के जी। देखिए, ये आपका क्यूमुलेटिव हो गया आपका WBS लेवल पे। ये हो गया सर, अच्छा, क्लियर हो अगर गया। आप इसको परमानेंटली देखना चाहते हैं तो आप एक काम कर सकते हैं। हम्म। अगर WBS लेवल पे ही देखना है तो आप इसमें WBS में जाके ये वाला हम्म। कॉलम आप इसमें जोड़ सकते हैं। इसमें समझ गया सर। WBS में भी जो है यूनिट्स वाला, आप ये कॉलम अगर ये जोड़ देंगे जो बजटेड यूनिट्स वाला, हम्म। तो आप इसमें से देख सकते हैं। ठीक है, ऐड करूं सर यहाँ पे? हाँ, करो, बिल्कुल करो, बिल्कुल। ये क्या होगा कि जब आप हाथ से कोई काम करते हो तो दिमाग में दर्द हो जाता है, जी सर। फिर जब वक्त आता है तो फिर एकदम से लगता है कि यार ये तो काम हम कर चुके हैं पहले, कर चुके हैं। है ना। ये ये देखो यूनिट्स यूनिट्स में जाओ, बजटेड, हाँ ले लो, ये BL प्रोजेक्ट लेबर यूनिट्स, नॉन लेबर यूनिट्स, ये आप ले लो, वही सेम ही है। ठीक। इन दोनों को खिसका के साइड में ले आओ। और ये WBS नेम, ये जो WBS नेम जो है, ये इसको आप ऊपर ऊपर। इसको रख दो ऊपर, ठीक है। हम्म, इसको क्लोज कर दो। देखो अब आपको यहाँ पे परमानेंटली दिखेगा कि भाई लेबर यूनिट्स कितने लगे हैं आपके। क्लियर सर, वेरी क्लियर हम्म, सर, थैंक यू सर। और एक और सवाल जो ये था कि जैसे हमारी जो रिसोर्स के मतलब स्टेक बार हम देखते हैं, ठीक है ना, तो हम्म। मतलब मुझे इसको स्क्रॉल करना पड़ रहा है सर, लेट सपोज मैं देखो आपको देखो जरा दिखाता कैसे। हूँ। एक्टिविटी, बार्स, ठीक है। तो ये रहा बार्स, इसमें खोल लो। ठीक है, अभी देखें, जैसे हमने ये सिलेक्ट किया हुआ है, ठीक है ना, हम्म, मैनेजमेंट टीम सिलेक्ट की हुई है,
तो अब मुझे इसको स्क्रॉल करना पड़ रहा है, देखना पड़ रहा है। तो मतलब हम ऐसा कोई तरीका है मतलब जो मतलब सिलेक्ट करें और डायरेक्ट वो आ जाए, वो बार आ जाए, ऐसा है? और मतलब ये सारे सिलेक्ट मतलब जो है हमने नहीं, देखने हो। इसमें क्या है, देखो मैं आपको दिखाता हूँ। हम्म सबसे पहले तो ना एक एक काम करता हूँ कि हम्म, पूरे प्रोजेक्ट को एक ही स्क्रीन में करता हूँ फिट। देखो ये ऊपर जो है ना, ये प्रोजेक्ट की लाइन है, जी हाँ। ये आपके प्रोजेक्ट की ड्यूरेशन। अगर नहीं फिट हो रही तो एक बार और माइनस का बटन दबा दो। हम्म अब ये इसमें आपका दिख गया, ये देखो ये आ गया, हम्म क्लियर। ये आ गया, हम्म ये आ गया इसमें। यही है ना जो आप तो क्या यही है। जवाब है सर, यही जवाब है सर, यही हाँ, जवाब है। ये ना ऊपर जो प्रोजेक्ट की टाइमलाइन है ना। अच्छा, अब हम्म आप एक चीज देखो, अगला उसको जूम जूम आउट आपको कर दो। करोगे तो फिर वो डेली पे चला जाएगा, लेकिन डेली फिर स्क्रीन से बाहर फैल जाएगा। तो आप इसमें थोड़ा सा हल्का स्ट्रेच करके इसको मैं समझ इसको हम गया सर। कहते हैं मैग्नीफाई, और हम्म इसको हम बोलते हैं जूम। जूम। ठीक है। अब जूम आप वो करोगे, हम्म आपके स्क्रीन में तो हम्म खैर मतलब काफी जगह है, लेकिन फिर हम्म भी शायद ये पूरा फिट ना हो। तो आप हम्म अगर एक मुश्त अगर पूरे प्रोजेक्ट के रिसोर्सेज की जो है, हम्म पूरी हम्म इसकी, हम ये कहते हैं ना हम्म कि पूरी जो हम्म प्रोजेक्ट की हम्म जो ड्यूरेशन है, अगर उसका पूरा एक बारी में देखना चाहते हो, आप स्क्रीन को हम्म ऐसे हल्का हल्का एडजस्ट करके बांट लो। जब पूरे प्रोजेक्ट की लाइन आपको दिख जाए, उसको थोड़ा सा फैला एक्सपेंड दो, कर, मैग्नीफाई कर दो। मैग्नीफाई कर लो। अब मैग्नीफाई करने के बाद आप ये देख सकते हो, अब जो क्लिक करेंगे आ जाएगा। रिसोर्सेज अपनी जो मैक्सिमम लाइन के नीचे है, अब यहाँ पे लाइन एकदम से डिप क्यों कर रही है पता है, ये वाली, क्योंकि यहाँ पे एक छुट्टी है, यहाँ पे वर्क 26 26 वर्कलोड कम है। नहीं, वर्कलोड कम नहीं है। देखो यहाँ पे ना जी। कंसिस्टेंटली हर एक रिसोर्स का जो है वो कैलेंडर का पैटर्न सेम है। हम्म कैलेंडर का पैटर्न सेम है क्योंकि वो सेम कैलेंडर हम्म से काम कर रहा है। अब हम्म यहाँ पे क्या है कि रिक्वायरमेंट ज्यादा है, कैलेंडर का पैटर्न ये और ये दोनों सेम है पैटर्न। जी अब जी। यहाँ पे पता क्या है कि यहाँ पे हमारे रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट ज्यादा है, क्योंकि हम्म हमारे पास लिमिटेड स्पेस है। तो इसलिए प्राइमावेरा क्या करता है, इसको हम्म फिट करने के लिए ऊपर से ये जो टोटल की जो लाइन है इसको ले आता है नीचे। देखो यहाँ हम्म पे कितना है, यहाँ पे ध्यान से देखना है, यहाँ पे वही वही सेम है यहाँ पे, समझ गया सर। है ना। वहां पे भी हम्म 48 है। अब यहाँ पे उसको फिट करने के लिए इसको, फिट करने के लिए हाँ, बिल्कुल फिट बिल्कुल। करने यहाँ पे स्केल अ- जो है यहाँ पे और ये बड़ी हम्म होगी, हम्म एक साथ अच्छा आप सर। इसमें देख सकते हाँ, ये सारी स्टेक बार्स जितने भी रिसोर्स हैं हम एक साथ देख सकते हैं सर, मतलब एक ही स्क्रीन पे मतलब आ सकती हैं, या मैं वन बाय वन ही चेक हो। करना हाँ हाँ पड़ेगा उनको? हाँ हाँ, बिल्कुल आ सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ, हम्म कैटेगरी वाइज आएगी। देखिए हम्म ये वाला जो है ना, ये जो है, हम्म ठीक है, इसके अंदर क्या हो रहा है, इसमें सबको कंसोलिडेट किया जा रहा है। अब ध्यान से देखना कि इसमें क्या कंसोलिडेट हो रहा है। देखो इसमें पैसा हो रहा है, या तो इसमें अभी इसमें जो है वो बार कौन सा चल रहा है, ये पैसे का चल रहा है अभी। आपने देखा यहाँ पे डिस्प्ले में जो यूनिट्स है, हम्म हम्म ठीक है। अब मैंने यूनिट्स ले लिया, मैंने कहा मैं सिर्फ अब मैं लेबर देखना चाहता हूँ। अब इसमें सिर्फ आपको ये लेबर लेबर दिख रही है। तो लेबर का मतलब है जितने भी आदमी हैं इसमें जो काम कर रहे हैं, प्रोजेक्ट मैनेजर सिस्टम, उनका ये टोटल है। आपने कहा नहीं, अब मैं जो है लेबर का नहीं ऑन देखना चाहता, अब मैं सिर्फ मैं मशीन मशीन का देखना चाहता हूँ। आपको हम्म याद है ये सिर्फ यहाँ पे क्यों आ रहा है, क्योंकि हम्म यहीं पे आपकी जो नॉन लेबर थी, जो आपका जो पीसी है वो यहाँ पे यूज हुआ है। साइन हुआ पीसी, है। हाँ पीसी यहाँ पे लास्ट में बिल्कुल। हुआ है असाइन, तो इसलिए जो है वो हम्म पीसी का जो है रिसोर्स यहाँ पे दिखा रहा है। ठीक हम्म है। आपने कहा हम्म नहीं मुझे सिर्फ जो है ना वो लेबर देखना है, तो यहाँ पे सिर्फ वो लेबर। आपने कहा मुझे लेबर और ये नॉन लेबर देखना है, तो आप हम्म इसमें जो है कंबाइन भी कर सकते हो हम्म इसमें, कि भाई इसमें मुझे क्या क्या देखना है। अब मान लो आपने कहा कि मुझे सिर्फ ये बजटेड बजटेड देखना है, ठीक है, एक्चुअल नहीं देखना हम्म है अभी, मतलब कितना जो है हम्म प्लान प्लान किया गया है, ठीक है। तो हम्म इसमें सिर्फ आपकी जो है ये बजटेड की लाइन आएगी सिर्फ। हम्म फिर ये आपने कहा सर। कि मेरे को देखना है एक्चुअल भी। अगर काम हम्म कंप्लीट होगा तो एक्चुअल की लाइन आएगी यहाँ पे, तो नहीं तो नहीं है। एक्चुअल तो यहाँ पे है ही नहीं, हम्म है ना। क्योंकि ये यूज ही नहीं हुआ अभी तक। हाँ, यूज एक्टिविटी नहीं क्लोज हुआ। नहीं, एक्टिविटी क्लोज नहीं हुई अभी हाँ, तक। है ना। तो आपने कहा चलो मैं इसमें ये लेबर को देखना चाहता हूँ। तो हम्म लेबर आपने शुरुआत में जितने काम ट्रैक किए हैं, तो हम्म बजटेड और एक्चुअल आपको ये दिखा रहा है साइड बाय साइड। अगर आप ये हम्म रिमेनिंग की बात करेंगे तो ये नीली लाइन बिल्कुल फैलती चली जाएगी, ये ग्रीन के बाद से, हम्म ये ग्रीन के बाद से ये नीली लाइन चली जाएगी। तो यहाँ पे आपको याद है एक काम को हमने 50% ट्रैक किया आधा था। आधा किया हुआ है, बिल्कुल 50% किया हाँ हुआ ठीक है ना, है। इसलिए मैं जो आधा। डेटा में टाइप मैं कराता हूँ, ताकि आप हम्म ग्राफ और डेटा के साथ मेंटली कोरिलेट कंपेयर। कर सकें।
अब जैसे जैसे काम बढ़ता चला जाएगा, ये सारी जो नीली बार्स है ना, ये हरी होती चली खत्म जाएगी। होती जाएंगी, हरी होती जाएंगी। अच्छा, खत्म तो होगी, लेकिन अगर ज्यादा इस्तेमाल होगा तो ये जो येलो से जो है ये ऊपर भी चली जा सकती है। तो येलो है आपका प्लान्ड और आपका ग्रीन है आपका एक्चुअल, एक्चुअल। हाँ, और ब्लू है आपका ये रिमेनिंग। रिमेनिंग। ये क्लियर। अब इसमें क्या है कि लेबर नॉन लेबर, लेबर नॉन लेबर, इसमें जो है ये कंबाइन कर रखा है। या तो आप ये लेबर का देख सकते हो या तो नॉन लेबर का देख सकते मैं समझ गया सर, हिंट मिल गई, सब समझ हो। हाँ, गया। थैंक यू सर। बस। तो बस सर, यही सवाल थे फिलहाल। अच्छा, चलो बढ़िया, वेरी गुड। थैंक यू सर। तो क्या प्रोग्रेस है सर मेरी, मतलब आपको, मतलब किस तरह से, मतलब वो लग रहा है? कर लो दुनिया मुट्ठी में, और थैंक यू सर। पर लग गए आपके, बस बस पहुंचो, सर, अल्लाह काम काम अल्लाह करो, अल्लाह। लिव ए गुड लाइफ। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। वेलकम। वेलकम। बाय बाय।